गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ क्लास 11th। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट अस सॉल्व सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। A reaction reaches a state of chemical equilibrium only when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. So that means the products react together at the same rate at which they are formed. Option C is the correct answer. For the reaction to HI gives H2 plus I2, the relation between Kp and Kc will be, हमें पता है Kp is equal to Kc into RT raised to power delta Ng. अब इस केस में difference in the number of gaseous moles of reactants and products is 0. ये भी दो हैं, ये भी दो हैं, तो delta Ng 0 हो गया, RT raised to power 0 1 है, तो Kp is equal to Kc आएगा. So option C is the correct answer. Then equilibrium constant for the reaction 2NO plus Cl2 gives 2NOCl. Equilibrium constant होता है concentration of products raised to power stoichiometric coefficient upon concentration of reactants. So NO raised to power 2 and Cl2 raised to power 1. तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी NOCl raised to power 2 is the correct answer. K1 and K2 are velocity constants of forward and backward reaction. Equilibrium constant K of the reaction is, forward velocity constant is K1, so K1 upon K2 will be equilibrium constant. Option C is the correct answer. The reaction N2 plus O2 gives 2NO is endothermic. So the forward reaction is favored by, क्योंकि endothermic है forward reaction, तो it is favored by increase in temperature. So this is not the correct option. Favored by decrease in pressure, क्योंकि number of moles same है, तो it is not favored by this is also incorrect. Unchanged, yes, because number of moles is same, so reaction remains unchanged by changing pressure. Option C is the correct answer. Consider the reaction equilibrium. SO2 plus O2 gives SO3. Reaction is exothermic. So on the basis of Lee-Chatelain's principle, condition favorable for forward reaction is एक्सोथर्मिक में, क्योंकि हीट रिलीज होती है तो डिक्रीज इन टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो टेम्परेचर लोअर होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स में ज़्यादा हैं तो इंक्रीज इन प्रेशर से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड. Equilibrium constant for reversible reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 is K. तो अगर ये K है तो half N2 plus 3/2H2 gives 1 ammonia. Equilibrium constant K dash will be K the whole raised to power half. So that means they will be related as K dash is equal to K square root of K or K raised to power 1/2. Option B is the correct answer. In a chemical reaction, 2SO2 plus O2 gives 2SO3. Increasing total pressure will lead to forward direction. So that means increase in the amount of SO3. Which of the following is a Lewis acid? तो electron deficient molecule BF3 is a Lewis acid. Of the given anions, strongest Bronsted base is, तो acidic character में oxidation state ज़्यादा वाला acidic होता है, तो उसका जो strong acid है उसका Bronsted base एक weak base होता है, तो इस तरह से जो इनमें से weakest acid होगा उसका Bronsted base strongest होगा.
तो वीकेस्ट एसिड है HOCl, so उसका Bronsted base OCl negative will be the strongest base. Conjugate base of HPO4 2 negative is, base बनाने के लिए हम H plus minus करते हैं तो PO4 3 negative. Option A will be the correct answer. Aqueous solution whose pH is 1.2, तो 7 से कम pH वाले acidic होते हैं, तो option 1. pH of a solution is defined by the expression negative log of concentration of H plus ion या positive log of 1 upon H plus ion. Option B is correct answer. pH of 7 signifies a neutral solution. When ammonium chloride is added to a solution of ammonium hydroxide, so only the concentration of OH negative ion decreases. The pH indicators are either weak acids or weak bases. What is incorrect about buffer solution? तो buffer solutions वो होते हैं जो pH में change को resist करते हैं. तो अगर वो कह रहे हैं कि they should change in pH on adding acid or base, तो that is incorrect. Precipitation takes place when ionic product exceeds the solubility product. Which of the following is an example of heterogeneous equilibrium? Heterogeneous equilibrium में reactants and products may be in different phases. तो option A में solid और gas दोनों phases हैं, बाकी सब में एक ही phase है. तो this is heterogeneous, rest are homogeneous. For the reaction A moles of A plus B moles of B gives products, according to law of mass action, rate of reaction is proportional to concentration of A raised to power A into concentration of B raised to power B. ये है स्टेट हेनरीज लॉ, इसको याद करना है आपने. हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन अ डेफिनेट मास ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सर्फेस ऑफ सॉल्वेंट. जितना गैस का प्रेशर सॉल्वेंट के ऊपर ज़्यादा होगा उतनी ही अंदर गैस ज़्यादा डिसॉल्व करेगी. मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड अबव द सॉल्वेंट. व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? गिव एन एग्जाम्पल. So equilibrium set up in a chemical process, that is when the rate of forward reaction becomes equal to backward reaction in a chemical reaction, is called chemical equilibrium. So for example, calcium carbonate decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide can attain chemical equilibrium. State and explain the law of mass action. The law of mass action states that the rate of a reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants at constant temperature at any given time. और अगर इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाओ तो रेज टू पावर भी लगा सकते हैं. तो अगर रिएक्शन है A प्लस B फॉर्म्स प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B. और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट डाल देंगे, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B कंसनट्रेशन. नाउ डिराइव द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन. तो मान लीजिए हमारा रिएक्शन है A प्लस B फॉर्म्स X प्लस Y. तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू is proportional to concentration of reactants. So rate of forward reaction is equal to Kf into A into B. Similarly, rate of backward reaction will be Kb into X into Y. अब at equilibrium forward reaction rate is equal to backward reaction rate. तो हमारे पास आ जाएगा Kf into A into B is equal to Kb into X into Y. K को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो Kf upon Kb is equal to XY अपॉन AB. तो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं. दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो KF and KB आर कांस्टेंट. सो रेशियो KF और KB विल बी a new constant represented by K, where K is the ratio of product of concentration of products to product of concentration of reactants. This constant is called equilibrium constant and is known as law of chemical equilibrium. So for any general reaction of the type A plus B gives C plus DD, equilibrium constant will be C, concentration of C raised to power C into D raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B. What do you understand by equilibrium constant? So the ratio of product of molar concentration of products
to the molar concentration of reactants at a given temperature is constant and is called equilibrium constant. And characteristics of equilibrium constant, the value of equilibrium constant for a particular reaction is constant at particular temperature. If reaction is reversed, then nu k will become 1 upon k, and if a reaction is divided by 2, then the nu k can be found out by finding under root of k. Then derive the relationship between kp and kc. तो हम कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन जिसमें a मोल्स ऑफ a b मोल्स ऑफ b से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रही हैं, c मोल्स ऑफ c एंड d मोल्स ऑफ d. तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ c रेज टू पावर c इंटू d रेज टू पावर d अपॉन a रेज टू पावर a इंटू b रेज टू पावर b. अब kp हो जाएगा इनके पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो, तो दैट इज partial pressure of c raised to power c into partial pressure of d raised to power d upon partial pressure of a raised to power a into partial pressure of b raised to power b. अब आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि P v इक्वल टू nRT. अगर हम V को इधर ले जाए तो P इक्वल टू n अपॉन वी आर टी हो गया, लेकिन n अपॉन वी सी होता है, तो P इक्वल टू सी आर टी आ गया. तो A पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ A C ऑफ A इंटू आर टी. इसी तरह पी बी हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ B इंटू आर टी, पी सी हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू आर टी, पी डी कंसनट्रेशन ऑफ D इंटू आर टी. तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के पी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की जगह हम C कंसनट्रेशन ऑफ C इंटू आर टी रेज टू पावर C कर सकते हैं. इसी तरह बाकियों में भी ये वैल्यूज़ डालने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, जिसमें से कंसंट्रेशंस को हम अलग कर लेंगे, आरटी को अलग कर लेंगे, और पावर्स बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, और इसी तरह नीचे वाली ऊपर आके माइनस हो जाएंगी. तो ये रेशियो हमारे पास Kc है, और ये C प्लस डी माइनस A प्लस बी हो गया डिफरेंस इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. तो ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गई Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू पावर delta Ng. State Lee-Chatelain's principle is, it states that at equilibrium, if system is subjected to a change in any of the factors such as temperature, pressure, concentration, equilibrium will shift itself in the direction in which the effect of change is reduced. हम जो change हो रही है उसको undo करने के लिए जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. Explain Arrhenius concept of acids and bases. So according to Arrhenius concept, acids are those substances which give hydrogen ion in aqueous solution. Base are those substances which give hydroxyl ions in aqueous solution. Bronsted-Lowry concept में acid is a substance which can donate hydrogen ion and base is a substance which can accept hydrogen ion. फॉर एग्जाम्पल ये H प्लस दे रहा है तो ये एसिड है, ये ले रहा है तो ये बेस है. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है? जब एक एसिड H प्लस दे के बेस बना लेता है तो ये एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और ये दोनों एसिड बेस पेयर कहलाएंगे. इसी तरह बेस प्रोटॉन लेकर अपना कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा, और ये पेयर कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर बेस और कॉन्जुगेट एसिड पेयर बना लेगा. देन गिव कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. किसी भी चीज़ का कॉन्जुगेट बेस निकालना हो तो उसमें से H प्लस माइनस कर देते हैं. तो इसमें से H प्लस माइनस किया तो CO3 2 नेगेटिव आ गया. NH3 में से H प्लस निकाला तो NH2 नेगेटिव आ गया. H2S में से H निकाल दिया तो HS नेगेटिव आ गया. इसी तरह कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए हम H प्लस प्लस कर देते हैं, तो NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH3. NH3 का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH4 प्लस. O2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा OH नेगेटिव. व्हाट इज़ ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? तो जो सब्सटेंस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है वो ल्यूइस एसिड है, जो डोनेट कर सकती है वो ल्यूइस बेस है. pH is negative log of
concentration of hydrogen ions minus log of H plus ion. और pH स्केल वो स्केल होता है जिसमें हम लोगारिथमिक स्केल जिसमें हम कंसनट्रेशंस को एज लॉग दिखा रहे हैं. तो इसमें 7 से ज़्यादा एल्कलाइन होती हैं, 7 से कम एसिडिक होती है और 7 वाला न्यूट्रल होता है. या अगर हमें किसी का pH निकालना है तो जैसे 0.001 मोलर HCl तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो जाएगा 0.001 यानी 10⁻³ मोल. इसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो वो pH बन जाएगा. तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ इज 3 तो pH इज 3. इसी तरह अगर बेस का pH निकालना है तो 0.01 मोलर NaOH हाइड्रोक्सिल आयन देगा 0.01 मोलर यानी 10⁻². H प्लस आयन की कंसनट्रेशन हम निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनटू OH नेगेटिव इक्वल टू Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज 10⁻14. अब इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन अगर हम डाल देंगे 10⁻² तो H प्लस आ जाएगा 10⁻14 अपॉन 10⁻² विच इज 10⁻12. इसका नेगेटिव लॉग आ जाएगा 12. What is common ion effect? तो suppression of degree of dissociation of a weak acid or a weak base by addition of strong electrolyte containing a common ion is called common ion effect. जैसे ये एक weak acid है और आयोनाइज करके H प्लस और एसिटेट आयन देखा है. अगर हम एक strong electrolyte डाल दें तो एसिटेट आयन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो रिएक्शन ली-चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इस तरह से इसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी. इस सप्रेशन को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं. व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट? द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन वाटर एंड केटाइंस और एनाइंस और बोथ ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अगर केटाइन वाटर को ब्रेक करके प्रोडक्ट्स बनाता है तो इट इज़ कॉल्ड केटाइनिक हाइड्रोलिसिस और अगर एनाइन ऐसा करता है तो इट इज़ कॉल्ड एनाइनिक हाइड्रोलिसिस. एक्सप्लेन बफर एक्शन एंड देयर टाइप्स. तो ऐसी सोल्यूशन जिसमें एसिड या बेस डालने पर उसका pH चेंज नहीं होता है, वो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन pH, उनको हम बफर सोल्यूशन कहते हैं. ये दो तरह की होती है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. एक्सप्लेन द बफर एक्शन ऑफ अ बेसिक सोल्यूशन. तो बेसिक बफर जो है वो होगा इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे NH4OH वीक बेस है और इसका क्लोराइड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका सॉल्ट है. तो ये बफर की तरह इस तरह से एक्ट करता है. दोनों ही कंपोनेंट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड आयोनाइज करते हैं. अगर हम इसमें एसिड डालेंगे तो H प्लस आइंस जो भी आएंगे वो OH नेगेटिव से रिएक्ट करके अनआयोनाइज्ड वाटर बनाएंगे. तो इस तरह से OH की कंसनट्रेशन कम होगी तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके और उतने ही OH नेगेटिव आयन बना देंगे और pH चेंज नहीं होगा. इसी तरह अगर हमने बेस डाल दिया OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन बढ़ सकती है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ेगी ये आपस में कंबाइन करके बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे और इस तरह से कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं देंगे और pH भी नहीं चेंज होने देंगे. सो ऑन एडिंग H प्लस आयन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके pH को चेंज को रेजिस्ट करता है और ऑन एडिंग बेस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके pH चेंज को रेजिस्ट करता है. इसी तरह एक्सप्लेन बेसिक बफर एक्शन और एसिडिक बफर में हम एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, दोनों आयोनाइज करेंगे. एसिड डालने पर जो H प्लस आइंस हैं वो बढ़ते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और वो रिएक्ट करके अनआयोनाइज्ड एसिड बना देंगे और इस तरह से pH चेंज नहीं होगा. और अगर बेस डाला है तो इसके आयंस बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं. H प्लस आयन कम होते हैं लेकिन ये और आयोनाइज करके उतने ही H प्लस आयन बनाकर pH को चेंज नहीं होने देता है. This is action of acidic buffer. Then solubility product of molar concentration of ions in saturated solution raised to power the number of ions formed in equilibrium is called solubility product. ये दो आयनिक प्रोडक्ट से डिफरेंट है. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशंस होती हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं. आयनिक प्रोडक्ट किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं.
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए कैलकुलेट होता है, आयनिक प्रोडक्ट किसी हर तरह के सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जबकि इसकी वैल्यू टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की चेंज के साथ चेंज करती रहती है। देन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको कंसंट्रेशन दे सकते हैं और पीएच निकालने को कह सकते हैं। तो बफर सॉल्यूशन के पीएच के लिए ये इक्वेशन है जिसको हेंडरसन्स हैसेलबैच इक्वेशन कहा जाता है। एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला है pH = pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और बेसिक बफर के लिए है pH = 14 - pKb minus log of concentration of salt upon base. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.